Hello everyone. Today we will discuss about the fifth part of national income and related aggregates. So far we have completed about the factor income, transfer income, then about the normal resident, domestic territory, then real and nominal GDP, then GDP deflator, and also the definition of national income and the related aggregates. Further, we discussed about the conversion of these aggregates into one another. Today, we will discuss about uh, the last topic of this chapter, this unit. This is related with the GDP and welfare, means the limitations of GDP. Let's start the topic. This is very, very important. Dear students, as we have already studied, that real GDP is measured at constant or base year price. On the other hand, nominal GDP is measured at current year price. Further, we discussed about their basic differences and we concluded that real GDP is a better indicator of growth or welfare. But real GDP itself is not free from the limitations. Today we will discuss about GDP, whether the nominal or the real have few drawbacks that reduce their scope to study, to estimate, to learn about the welfare of a country, that is welfare of people. Let's start a topic, beta. This is about limitations of GDP and welfare. The very first one is distribution of income, then composition of GDP, then non-monetary exchanges and externalities. Let's discuss one by one. The very first, this is about the distribution of income. Dear students, as we have already studied, that GDP refers to the market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. The most important issue is that GDP is not concerned with distribution of income or the wealth at all because it is just related with the flow of goods and services. It does not pay any attention towards the distribution. If with the increase in GDP there is unequal distribution, means the maximum proportion of cake, that is the maximum proportion of GDP, is taken by few people, the result will be the number of population, number of people living below poverty line continue to increase, and the result is increasing gulf or increasing gap between rich and poor, have and have nots. Now, because of this increasing gap, the the problem arises that this is about the social and economic unrest. बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, पॉवर्टी बढ़ती चली जाती है और रिज़ल्ट क्या होता है, सोशल वेलफेयर बढ़ने की बजाय डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि दस जीडीपी इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर और ट्रू इंडिकेटर of welfare because it does not give any attention towards equal distribution of income and wealth. ये सिर्फ क्या कहता है कि कितनी इनकम जनरेट हो रही है, बस सिर्फ ये मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड है. इनकम कितनी जनरेट हो रही है ये इससे रिलेटेड है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये इससे रिलेटेड नहीं है. बेटे आपके पास अलग अलग पॉइंट्स में भी क्वेश्चन आता है. जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर फॉर जीडीपी. मतलब जीडीपी का सिर्फ आपको यही पॉइंट है उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. मूव टू द सेकेंड टॉपिक. दिस इज़ अबाउट द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी. As we have already studied that GDP means P into Q, where P refers to price and Q refers to quantum. मतलब ये सिर्फ क्वांटिटी या क्वांटम से कंसर्न है, कितना फ्लो आ रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर. लेकिन ये क्वांटम बना किससे है,
क्या सामान प्रोड्यूस हुआ है, वॉर वेपन्स प्रोड्यूस हुए हैं, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुई है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हुई है, या डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस हुई है। क्योंकि ये सब क्या क्वांटम के बारे में बात कर रहा है, ये उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, मतलब नेचर के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा, ये सिर्फ क्वांटम ओवरऑल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है। बट डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड, more production of defense goods or war weapons like missiles, tanks, or rifles, guns, etc., will not increase the welfare of the people. Welfare of the people of a country will increase only when there is more production of peacetime goods, that is, the consumer goods like bread, butter, shirt, pen, etc., or the capital goods like machinery, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एट्सेट्रा। लेकिन क्योंकि जीडीपी नेचर के बारे में डिस्कस ही नहीं करता, इसका मतलब ये वेलफेयर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मिस कर रहा है। दैट्स वाई जीडीपी इज़ नॉट अ good indicator or true indicator of welfare, because it does not give any attention towards the nature of goods and services produced। कौन सी गुड्स बनी है, इस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहा। Move to the next point. This is about the non-monetary exchanges. Dear students, non-monetary exchanges refers to such exchanges which do not involve the use of money as a medium of exchange, or you can simply say this is a system in which goods are exchanged for goods. This is also known as barter system. एक्सचेंज होता है लेकिन बिना मनी के होता है। जैसे हमने अपने 10th क्लास में बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि आपस में गुड्स का एक्सचेंज हो जाता है, या तुम मेरे लिए ये काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। बार्टर सिस्टम में भी सेटिस्फेक्शन तो होता ही है, बार्टर सिस्टम में भी वेलफेयर तो होता ही है। मैंने एक किसी कारपेंटर को अपने घर बुलाया, उससे मेरे घर में काम किया और बदले में मैंने उसको 1 क्विंटल गेहूँ दे दिया। मतलब मेरी ज़रूरतें भी सेटिस्फाई हो गई हैं, कारपेंटर की भी ज़रूरतें सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का मॉनेटरी गेन नहीं हुआ। अब जीडीपी क्योंकि मनी वैल्यू से ही रिलेटेड है, सो ऐसे किसी भी ट्रांसैक्शन को या एक्सचेंज को जीडीपी कवर ही नहीं करता, बिकॉज नॉन मॉनेटरी का उसमें मतलब ही नहीं है। बाय डेफिनेशन जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, सो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की मार्केट वैल्यू होती ही नहीं है, इस वजह से जीडीपी इसको कवर नहीं करता। इसका मतलब जीडीपी वेलफेयर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मतलब बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को स्टडी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है। इसको मैं रीड करूँगी, इट विल बी easy for you to understand the concept. Non-monetary exchanges refers to such exchanges which do not involve the use of money as a medium of exchange. In such exchanges, goods are exchanged for goods, that is, it is known as barter system. In economies like of India, barter system of exchange is not totally non-existent. बच्चे, barter system जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल बढ़ता चला गया, बार्टर सिस्टम की सिग्निफिकेंस ख़त्म होनी शुरू हो गई। हम अपने 5th चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बार्टर सिस्टम की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी ये टोटली नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। रूरल एरिया में पर्टिकुलरली अभी भी हमें बार्टर सिस्टम मिल जाता है। अब बार्टर सिस्टम क्या कहता है हमें? देयर इज स्टिल एविडेंट इन रूरल एरियाज where payments for farm labor are often made in kind rather than cash, but such transactions are not recorded because they are outside the monetary system of exchange. To this extent, GDP remains underestimated, क्योंकि underestimated, thus non-monetary exchanges make GDP an inappropriate index of welfare. जीडीपी में आ जाना चाहिए था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को भी, लेकिन क्योंकि जीडीपी बाय डेफिनेशन इसको कवर नहीं करते, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। बट इन डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक अमेरिका और अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। बच्चे यहाँ एक करेक्शन करूँगी मैं, इट शुड बी नॉन मॉनेटरी
Non-monetary, it should be exchange. Non-monetary transactions are ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता कि जहाँ पर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो रही हो. अकॉर्डिंगली देयर इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एस्टिमेशन इज़ ऑलमोस्ट निल. ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के इम्पैक्ट हैं ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल अभी भी लिमिटेड होता है. तो लोग अपनी ज़रूरतों को थ्रू बार्टर सिस्टम और थ्रू नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इसको कवर अप कर लेते हैं, और इसी वजह से जीडीपी का एक्चुअल एस्टिमेशन हमें नहीं मिलता. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज़ अबाउट द लास्ट. दिस इज़ द एक्सटर्नैलिटीज़. एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है हार्म्स और बेनिफिट्स ऑफ पीपल जो हमें कहीं बाहर से ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर लोगों को किसी तरह का नुकसान होता है या बेनिफिट होता है तो हम इसको एक्सटर्नैलिटीज़ बोलते हैं. बेनिफिट्स के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, और अगर कोई हार्म हुआ है तो उसके लिए हमें कोई पेनल्टीज़ नहीं मिलती. जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे घर के पास मेरे घर के साथ वाले घर में एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, तो वो अमरूद मेरे घर में आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए कुछ पे नहीं कर रही, लेकिन वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है. ये तो बन जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. अगर मेरे घर के पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से स्मोक निकलता रहता है, इससे मेरे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता जा रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव है. और इस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से मुझे हार्म मिल रहा है, मतलब मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है, डिसएडवांटेजेस हो रही हैं मुझे, लेकिन वो फैक्ट्री ऑनर मुझे इसके लिए कोई पे नहीं कर रहा, मतलब उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही. ये बन जाएंगे हमारे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़. और जीडीपी ऐसी किसी भी एक्सटर्नैलिटी को स्टडी नहीं करता, कंसीडर नहीं करता, जबकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हमारे वेलफेयर को बढ़ाती हैं और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हमारे वेलफेयर को कम करती हैं. मतलब externalities, whether the positive or the negative, have a greater impact on welfare, but GDP does not pay any attention towards these external factors. That's why GDP is not a true indicator of welfare. बच्चे आपने इसमें डेफिनेशन लर्न करनी है, आपने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, और फिर साथ में आप बताओगे कि जीडीपी इसको स्टडी नहीं करता, इसका मतलब जीडीपी इसको स्टडी नहीं करा, इसका मतलब वो वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर नहीं है. आपके पास पेपर में चारों पॉइंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं. अगर चारों पॉइंट आपके पास आ जाए, क्वेश्चन आया आपका एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, तब आप, यह सिंपल आ गया, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी. आपको चारों पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे ब्रीफली, फिर आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस में हर पॉइंट के लिए 2 या 3 सेंटेंसेस देकर आप इसको प्रिपेयर करोगे. अगर आपके पास अलग अलग पॉइंट आ जाते हैं डिस्कस करने के, फिर आप थॉरोली इनको लिखोगे. मैंने पूरी स्लाइड आपके एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, मतलब हर स्लाइड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज़ अबाउट द मनी इल्यूजन. While discussing about the nominal GDP, that is GDP at current prices, I told you that there may arise a situation of money illusion when GDP is measured at current price. Today we will discuss about what is money illusion and how it can be explained with the help of an illustration. Let's start the topic. Money illusion refers to a situation when GDP increases due to increase in price level even when there is no increase in the flow of goods and services in the economy. Dear students, as we have already studied that in case of nominal GDP, GDP is equal to P into Q, where P priceable, it is variable, Q also variable. P and Q both are variable because we are measuring GDP at current price. So it may be possible कि क्वांटिटी में इंक्रीज़ हुआ ही नहीं है और प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से जीडीपी भी इंक्रीज़ हो गया. ये एक भ्रम है. इल्यूज़न का मतलब ये क्या होता है, भ्रम. जैसे हम लोग समर्स में जाते हैं कहीं, तो क्या होता है कि दूर से आपको ऐसे लगता है कि सड़क के ऊपर पानी है, जबकि जब हम पास पहुंचते तो वहाँ पानी नहीं होता, सूखा होता है बिल्कुल. इससे हमें क्या, सिर्फ एक पानी का भ्रम होता है.
ऐसे ही मनी इल्यूज़न है, हमें ऐसे लगता है कि जीडीपी बहुत बढ़ गई है, लेकिन इन रियलिटी जीडीपी बढ़ी थी ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल. दिस इज मनी इल्यूज़न. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द इलस्ट्रेशन. Yes, beta. It can be explained with the help of an illustration. In this is table number 1. This concept means this illustration is based on an assumption. It is assumed that the economy produces wheat, cloth and sugar, which it should be cloth. Wheat, cloth and sugar. Clear? So, in the year 2011-12, कमोडिटी वीट क्लोथ एंड शुगर, क्वांटिटी बिल्कुल साथ में आपने प्रॉपर मैजिंग यूनिट देना है. वीट 20 टन्स, क्लोथ 100 मीटर्स, शुगर 5 टन्स. देन करस्पॉन्डिंग प्राइस लेवल. प्राइस ऑफ वीट 100 रुपीज़ पर टन, प्राइस ऑफ क्लोथ 5 रुपीज़ पर मीटर, शुगर 500 रुपीज़ पर टन. जीडीपी का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? जीडीपी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. तो हम क्या करेंगे? P इंटू क्यू. दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2000, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, 500, सो एंड सो. एंड व्हाट इज़ द टोटल जीडीपी? दिस इज़ 500. इसको हम इन करोड़ कर लेते हैं. दिस इज़ 500 करोड़. अब इसको ध्यान में रखना आपने. इन द ईयर 2011-12 नॉमिनल जीडीपी वॉज रुपीज़ 5000 करोड़. नाउ मूव टू टेबल नंबर 2. टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 1 को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो बच्चे कमोडिटीज़ तो वही हैं जो 3 हमने लिए हैं. क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा. मैं पिछली साइड पे जा रही हूँ एक बार. वीट 20 टन्स, वीट 20 टन्स, क्लोथ 100 मीटर्स, शुगर 5 टन्स. क्लियर? जो चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आया. पहले वीट का प्राइस कितना था? 100 पर टन. अब प्राइस कितना है? 1000 पर टन. पहले क्लोथ का प्राइस था 5 रुपीज़ पर मीटर, अब है 20 रुपीज़ पर मीटर. पहले शुगर का रेट था 500 पर टन, अब हो गया 1600 पर टन. कोरस्पॉन्डिंग जो जीडीपी नई आई हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग जो जीडीपी नई आई है वो भी उसी तरह से हम पी इंटू क्यू करेंगे. पी इंटू क्यू करते ही हमारे पास आ गया 30,000 करोड़. इन द ईयर 2011-12 it was 500 crore and now it is 30,000 crore. मीन्स 6 टाइम्स हो गया है. पहले 5,000 था, अब 6 टाइम्स बढ़कर 30,000 हो गया. लेकिन ये एक मनी इल्यूज़न है. क्यों मनी इल्यूज़न है? कि सिर्फ पैसे बढ़े हैं. पी की वजह से आ रहा है, एक्सक्लूसिवली प्राइस की वजह से चेंज हुआ है. क्वांटम में तो चेंज आया ही नहीं है. अगर क्वांटम में चेंज नहीं आया इसका मतलब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इम्प्रूव नहीं होगा, बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने की बजाय, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने की बजाय और कम हो जाएगी. रीज़न क्या है? महंगाई बढ़ गई है, सामान उतना ही है, लोग उसी एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा पे करने को तैयार हैं. पीपल आर नाउ रेडी टू पे मोर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. रिजल्ट इज इन्फ्लेशन. जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो उसको खरीद सकते हैं क्योंकि दे आर कैपेबल टू परचेज. और जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होती जाएगी. मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है, लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन होना शुरू हो गया है. ये जो ग्रोथ आ रहा है ये सिर्फ इल्यूज़न है, मनी इल्यूज़न है. रियलिटी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर नहीं आ रहा. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? It is clear from the table 1 that nominal GDP in the year 2011-12 was rupees 500 crore and it increases to rupees 30,000 crore in the year 2018-19. It is a situation of money illusion because GDP has driven exclusively by the rise in price level as the output has remained constant. So this is all about money illusion. With this, your topic is over. This chapter is also completed. बच्चे there is a question related with injections and leakages. यहाँ नहीं करेंगे हम उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जब हम अपना ADAS का कॉन्सेप्ट करेंगे. वहाँ पर हम इंजेक्शंस और लीकेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ
Few questions are there for assignments. Briefly explain the limitations of GDP as an indicator of growth. You can easily complete this question. Then explain the concept of externalities. Explain non-monetary exchanges as a limitation of using GDP as an index of welfare of a country. What do you understand by money illusion? Explain with the help of an illustration. चारों क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न आ रही थी कि इसमें आंसर क्या देना है. देखो बेटा, अगर आपके दोनों ही सर्कुलर फ्लो हैं, अगर आपके पास सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ टू सेक्टर आ जाए या टू सेक्टर इकोनॉमी आ जाए, तब तो आप इसमें हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर वाला डायग्राम बनाकर उसी को एक्सप्लेन करोगे. और अगर आपके पास सीधा आ जाता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तब आप इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन वाला डायग्राम बनाकर उसको एक्सप्लेन करोगे. क्लियर बेटा? सो विद दिस योर टॉपिक इज़ ओवर. बी प्रिपेयर्ड फॉर written test on Thursday. Next Thursday there will be a subjective test of chapter number 3. So try to complete your topic properly. Complete your fair notebooks also. जितने क्वेश्चन आपको नोट करा रही हूँ सब अपनी कॉपी में प्रिपेयर करिए. ओके बेटा? Goodbye dear students. Stay home. Stay safe. Do your work properly. Have a wonderful day. Goodbye dear students.